Hello, friends. So let us move further in our series of MCQ. So let us start. So you can join our test series also by visiting Tyari 360 IS. So now the question 41, that is Samgrahitri. Samgrahitri is in ancient period was. So the term is related with the Mauryan Empire. The term is related with the Mauryan Empire. It was an official post who look after the royal treasury. So who was in charge of royal treasury? He was known as Samgrahitri, or in other words, you can say that Samgrahitri. Okay. So number next is, consider the following statement regarding the features of Mohiniyattam. So मोहिनीअट्टम जो है, इट इज अ क्लासिकल डांस है. कहां का है? केरला का है. सोलो डांस है. सम mythical history is involved with the मोहिनीअट्टम डांस. दैट इज, इट इज सेड कि भाई जो मोहिनीअट्टम डांस है लॉर्ड विष्णु का डांस था जब उन्होंने मोहिनी का रूप लिया था, जब समुद्र मंथन किया गया था. ओके, so it has been given the status of classical dance, so the statement is correct. Mohiniyattam is characterized by, so it is the Lasya dance. So there are two types of dance, Lasya and Tandav. ये हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो मोहिनीअट्टम जो है, इट इज द लास्य एस्पेक्ट ऑफ द डांस. ओके, इट इज ग्रेसफुल, इट इज showing body movement with no abrupt jerks of sudden leaps. It is a classical dance or solo dance of Kerala. एंड ऑफकोर्स मोहिनीअट्टम में खास टाइप की कॉस्ट्यूम, खास टाइप की मूवमेंट, खास टाइप की साड़ी, खास टाइप का एवरीथिंग इज वेरी मच स्पेसिफिक इन केस ऑफ मोहिनीअट्टम डांस. ओके, सो नंबर नेक्स्ट इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र हमें पता है किससे रिलेटेड है? मौर्यन एम्पायर से. अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है. अर्थशास्त्र डील्स विद political system. अर्थशास्त्र deals with economy, agriculture, mining, way of life, धर्मशास्त्र, everything. Okay, so the Mauryan period, अर्थशास्त्र में क्या गया है with respect to this question? In Mauryan period, slaves were employed in agriculture operation. Of course, this statement is very, very true. Kautilya mentioned that royal orders supersedes all other sources of authority, including dharma. तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है, जो राजा कहता है वही धर्म है. राजा कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है जो धर्म से परे है, राजा धर्म में मेंशन नहीं किए गए हैं, वो भी राजा डिसीजन ले सकता है. सो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विजयनगर एम्पायर 1336, 37 में बना. विजयनगर एम्पायर में 4 मेन डायनेस्टीज थी: संगम डायनेस्टी, सलूबा, पलूबा एंड अराविडु. सबसे प्रोमिनेंट डायनेस्टी सलूबा, और उसका सबसे पावरफुल रूलर कृष्ण देव राय, केडीआर. ओके, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर. बाबर का कंटेम्पररी था. So Krishnadev Rai was the greatest ruler of Vijayanagar Empire, belonged to Saluva dynasty. The first statement is correct. Local self-government was very strong under Vijayanagar Empire. Of course, Vijayanagar Empire का जो government system था, उन्होंने चोला empire से लिया था. So Chola was known for the local self-government or village government. वो उन्होंने यहां से हायर किया हुआ था. So both the statement is correct. Okay. Then consider the following statement with respect to 1813 का एक्ट. सो 1813 के एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो किया गया था. दूसरा, 1 लाख रुपए सैंक्शन किया गया. ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अबॉलिश की गई. सिर्फ 2 चीजों में रखी गई, एक टी में एंड ट्रेड विद चाइना. एक्सेप्ट मोनोपोली को अबॉलिश कर लिया गया. ओके, सो नाउ द कंसीडर स्टेटमेंट. मैनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वर गाइडेड for making the social base in India. So this is for social base. 1 लाख रुपया, education and Christian missionaries. So this statement is correct.
Number 2, the Charter Act of 1813 ended the monopoly of East India Company in trade. Monopoly end होगी except for tea and opium. So the statement is not correct. क्योंकि ओपियम का मेंशन नहीं किया गया है, चाइना का मेंशन किया गया है, तो स्टेटमेंट इज नॉट fully correct. Only one statement is correct, that is 1. Okay, number next. Which of the following literary works provide us an insight into the political condition as well as the system of government in ancient India? तो बृहस्पति सूत्र, it provided the philosophical base to चार्वक संहिता or चार्वकवाद philosophy, so it was very much there. अर्थशास्त्र by कौटिल्य, again it was very much there. राजनीति राज रत्नाकर, again it is very much there. तो all statements are correct. Okay, so ये सीधा सीधा क्वेश्चन है. Now consider the Dravid style of temple architecture. जैसे हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो नॉर्दर्न नॉर्थ में जो टेम्पल स्टाइल है उसको बोलते हैं नगर और नागरा, और जो साउथ में है उसको बोलते हैं द्राविड़. बाकी इसके सब स्कूल्स हैं. नॉर्थ में द्राविड़ स्कूल, नगर स्कूल के सब स्कूल्स हैं, साउथ में द्राविड़ स्कूल के सब स्कूल्स हैं. सो द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड अंडर चोलास. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट वाज इनिशिएटेड अंडर पल्लवास. पल्लवास के टाइम पीरियड में इनिशिएट हुआ और चोलास के टाइम पीरियड में पीक पे पहुंचा. Dravid style of architecture was characterized by high walls and gateways. So this is a temple. This is a temple and this is the gate. High walls. और फ्रंट पे क्या है, बहुत बड़ा एक गेटवे है जिसको गोपुरम बोलते हैं, और टेम्पल के ऊपर क्या है, a kind of you can say that superstructure, जिसको बोलते हैं विमान. Okay. So the Dravid style of architecture was characterized by high walls, गेटवेज टॉप बाय लार्ज पिरामिडल टावर. ये पिरामिडल टावर जो है इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो इसको विमान बोलते हैं. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. द लिंगराज टेम्पल इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दिस आर्किटेक्चर. लिंगराज टेम्पल कहां पे है? उड़ीसा में. उड़ीसा में द्राविड़ स्कूल नहीं है, वहां पे नगर स्कूल है. सो दिस इज द example of Odisha school of architecture, not Dravid. So the third statement is not correct. Only first and second statement is correct. Okay. Then Murakkaba, the term in Sufism, of course, it means meditation. Murakkaba in Sufism means meditation. मुरक्कबा में ऐसे इस्लाम में आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे इस्लाम में इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सूफीज्म यह कहता है कि जब आप मेडिटेशन करोगे, किसी ना किसी का ध्यान करोगे, यू हैव टू फोकस ऑन समवन, द प्रेजेंस ऑफ समवन. ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ समवन माइट बी अल्लाह, नॉट हिज इमेज बट हिज प्रेजेंस. तो यू गो डीप इनटू द मेडिटेशन, और यू कैन से दैट इमेजिनिंग सम सूफी सेंट. ओके, सो द टर्म इज नोन एज मुरक्कबा, मीन्स मेडिटेशन. ओके, सूफीज्म में मुरक्कबा का क्या मतलब है? मेडिटेशन, जो हिंदुइज्म में है. Then consider the following statement about the schools, Indian schools of philosophy. There are generally दो schools हैं philosophy के, एक आस्तिक, एक नास्तिक. आस्तिक वो स्कूल है जो वेदों को मानता है, नास्तिक वो स्कूल है जो वेदों को नहीं मानता है. आस्तिक और नास्तिकता यहां पे गॉड पे नहीं है, वैदिक फिलॉसफी पे है. जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म को नास्तिक स्कूल बोला गया है क्योंकि उन्होंने वैदिक रिलीजन को और वैदिक प्रथा को क्या है, नकार दिया था. ओके, सो कंसीडर फॉलोइंग स्कूल. देयर आर नंबर ऑफ इंडियन फिलोसफी. चार्वकवाद बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ वेदा, बिल्कुल नहीं. चार्वकवाद जो है बिल्कुल नास्तिक स्कूल था. इन्होंने क्या किया, डिनाई किया, वैदिक फिलोसफी को माना ही नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. मीमांसा, अनदर स्कूल, बिलीव्स इन वेदा, वेदों में बिलीव करते हैं बट नॉट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. This concept is true. Sankhya school believes both in Vedas and existence of God. Sankhya school believes in Veda, लेकिन God में ये भी believe नहीं करते हैं. तो this statement is wrong. So only second statement is correct. Six school of philosophy हमने ancient की classes में discuss किया हुआ है. Okay? Then the difference between Hindustani and Carnatic music. Hindustani music north का, कार्नेटिक म्यूजिक साउथ का. हिंदुस्तानी म्यूजिक में इंप्रोवाइजेशन है, साउथ में इंप्रोवाइजेशन नहीं है. सो लेट अस कंसीडर स्टेटमेंट. कार्नेटिक म्यूजिक हैज स्कोप फॉर इंप्रोवाइजेशन. ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत है.
has no scope of improvisation, whereas Hindustani music cannot be improvised, but Hindustani music can be improved. तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हिंदुस्तानी म्यूजिक की बहुत सारी इंप्रोवाइजेशन है, जैसे ध्रुपद स्टाइल, जैसे ठुमरी, जैसे टप्पा, जैसे गजल. तो अलग अलग स्टाइल है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, लेकिन जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसका फिक्स स्टाइल है, वो एक कृति है, कृति पे बेस्ड है वो सारा. ओके, कार्नेटिक म्यूजिक हैज अ कन्वेंशन ऑफ टाइम, सीजन, बट हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज नो सच कन्वेंशन. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कार्नेटिक म्यूजिक में कन्वेंशन नहीं होती है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में कन्वेंशन है. हिंदुस्तानी म्यूजिक टाइम स्पेसिफिक है. हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है, राग हैं, जैसे राग भैरवी, जैसे राग मेघ, जैसे अलग अलग राग हैं, राग मलखान. सो दैट इज टाइम स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक, मूड स्पेसिफिक. सो द बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट. सो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है यहां पे. ओके, देन 51, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन द मुगल पेंटिंग. मुगल का टाइम पीरियड जो है, मुगल स्कूल फ्लरिश हुआ इस टाइम पीरियड के बीच में. हमजा नामा इज मोर रिफाइंड एज कंपेयर टू तूती नामा, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तूती नामा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ द मुगल स्कूल. अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये इलुस्ट्रेटिव वर्क है, ये पेंटिंग की बात चल रही है, मिनिएचर पेंटिंग की बात चल रही है. ओके, मिनिएचर पेंटिंग की बात चल रही है यहां पे. द यूज ऑफ डेकोरेटेड मार्जिन अराउंड द पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय शाहजहां. देखिए, पेंटिंग का जो सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मुगल एम्पायर में किसी ने किया ना, वो जहांगीर ने किया है. शाहजहां के टाइम पीरियड में पेंटिंग है, लेकिन जहांगीर वॉज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द पेंटिंग. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, नो, इट वॉज not Shahjahan but Jahangir. Okay, Jahangir. So only 1 and 2 is correct. Number next, consider the following statement. Buddhist स्तूप. देखो, तीन चीजें हैं बुद्धिस्ट आर्ट में पढ़ते हैं हम. स्तूप, चैत्य एंड विहार. स्तूप जो है, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टेम्पल कंसिडर्ड टू बी द बुद्धिस्ट टेम्पल. चैत्य जो है, these are the prayer hall. Vihar are the residential quarter or rest houses. Okay, the Buddhist stoops were built exclusively at the places where Buddha's remains were preserved. देखो, ये स्टेटमेंट ठीक है कि बुद्ध स्तूप बनाए गए, यहां पे बुद्ध के रिमेन्स हैं, उस पे बनाए गए बुद्धिस्ट स्तूप, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं बनाए गए. बड़े सारे बुद्धिस्ट स्तूप वो बनाए गए जो महात्मा बुद्ध के बाद बने, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रिमेन्स पे भी बनाए गए. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. चैत्य वॉज अ प्लेस फॉर टीचिंग. चलो ठीक है, डिस्कशन, इंटरेक्शन बिटवीन बुद्धा एंड द मॉन्क्स. नो, इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द बुद्धास एंड द मॉन्क्स. इट वॉज अमंग द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एज वेल. ओके, सो द दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है. सो नीदर 1 or 2. ओके, देन martial art. So martial art, Silabam is a martial art of Tamil Nadu. जैसे गतका जो है तमिलनाडु है. थंग का, इट इज अ मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर. कलेरीपत्तू, इट वॉज अ मार्शल आर्ट ऑफ केरला. एंड गोतीपा, इट इज नॉट अ मार्शल आर्ट, इट इज अ डांस. इट इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ उड़ीसा. ठीक है, तो मार्शल आर्ट की यहां तक बात आएगी. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. सो 1 3 4. वेयर इज 1 3 4? 1 3 4. सो दिस इज करेक्ट. अगेन देयर इज अनदर मार्शल आर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लाठी, जैसे गतका, है ना. With refer to the modern Indian architecture, consider the following statement. Iberian Peninsula. Iberian Peninsula, अगर आपको ज्योग्राफी का मैप पता है तो Iberian Peninsula जहां पे पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन वाला ये वाला एरिया है, this is called Iberian Peninsula. Okay? Style of architecture brought in India by Portuguese. पुर्तगालियों ने लाया. This is very important, correct statement. The use of large windows was one of the main feature of the Victorian style. So what is the Victorian style? अंग्रेजों ने
जो स्टाइल इंडिया में लाया उसको बोलते थे गोथिक स्टाइल। जब गोथिक में इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिक्स हुआ, इंडियन स्टाइल में मींस हिंदुस्तानी, पर्शियन, मुगल, अफगानी, राजपूत, तो ये कंबाइंड होके बना विक्टोरियन स्टाइल। तो इसकी खास बात क्या है? लार्ज विंडोज, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज। ओके, तो यूज ऑफ लार्ज विंडोज वाज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ विक्टोरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द पंचतायन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पंचतायन जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये दोनों में आता है। इट इज बोथ इन द्रविड़ स्टाइल प्लस नगर स्टाइल। पंचतायन मीन्स 5, it signifies something 5. So this is the main shrine, ये मेन श्राइन है टेम्पल का, यहाँ पे गर्भगृह है और 4 कॉर्नर पे छोटी छोटी 4 श्राइन्स हैं। So the main shrine plus 4 shrines in the different corners is this system of architecture is known as Panchatayan style or Panchtayana style. So ये है क्या है? The गर्भगृह is divided into 4 sections, keeping the main deity in the middle. No, this was not so. गर्भगृह मेन टेम्पल, मेन यही गर्भगृह है। Okay, the main shrine is built on a rectangular plinth with 4 smaller subsidiary shrines at the 4 corners. So this is the correct answer. 4 corners पे जो है छोटी छोटी सब shrines हैं, सब shrines हैं जिसको पंचतायन स्टाइल बोलते हैं। The temple is raised on the platform, बाकी सारे गलत हैं। So the correct answer is B. Which of the following is are effect of Iranian invasion? So Iranian invasion somewhere around 535, कहीं पे 545, तो साइरस, डैरियस, ठीक है, तो ये इरानियन इन्वेजन हुआ इंडिया में शुरू में। इरानियन इन्वेजन के बाद मैसेडोनियन इन्वेजन हुआ, ग्रीक इन्वेजन हुआ, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है अलेक्जेंडर का। ओके, सो इंपैक्ट क्या पड़ा? इट गेव एन इम्पटस टू द इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई भी इन्वेजन हुआ इंडिया का, चाहे मुगल इन्वेजन है, चाहे अफगान इन्वेजन है, चाहे ईरानियन है, चाहे पर्शियन है, चाहे मैसेडोनियन है, चाहे इंडो ग्रीक से, चाहे कुशान से, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिली ही मिली। सो दिस वाज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इवेंचुअली लेड टू द अलेक्जेंडरियन इन्वेजन, ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है। इट ब्रॉट टू इंडिया द खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो भी ईरानियन इन्वेजन की कंट्रीब्यूशन है। ओके, ईरानियन इन्वेजन की कंट्रीब्यूशन है और एक बड़ी सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। सो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Which among the following are the only known example of cave painting during the Gupta period? cave painting की कौन सी एग्जांपल है? अजंता एलोरा, अजंता बाग एंड लोमस ऋषि, एलोरा एंड नासिक। सो द करेक्ट आंसर इज अजंता एंड बाग पेंटिंग। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश में। दोनों का स्टाइल सेम, दोनों का थीम सेम। थीम क्या है? बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में भी क्या है? जातक स्टोरीज है। ठीक है, ओके। देन 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, राजा राममोहन राय। ब्रह्मो समाज, राजा राममोहन राय, दैट इज राजा राममोहन राय। सती सिस्टम को अबॉलिश करना, राजा राममोहन राय। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किताब, राजा राममोहन राय। मिरातुल अखबार, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय was an excellent blend of East and Western civilization. Raja Rammohan Rai was an internationalist. Raja Rammohan Rai was the crusader for the social reform. Raja Rammohan Rai was he worked for the upliftment of the women. Raja Rammohan Rai आत्मीय समाज। राजा राममोहन राय ने बड़े सारे काम किए। So let us consider the statement. He worked in the East India Company between 1803 से 1805. This is correct statement. His philosophy was Vedantic. वेदों में बिलीव करता था, उपनिषदिक फिलॉसफी में बिलीव करता था। He rejected polytheism and idol worship. दोनों को रिजेक्ट किया। सारी स्टेटमेंट ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा, 1828 ब्रह्मो सभा, इसी का नाम चेंज करके 1830 में ब्रह्मो समाज बनाया गया। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किताब लिखी। ओके, देन प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखी।
मिरातुल अखबार लिखा, वेदांतिक स्कूल बनाया. सो देयर इज सो मेनी कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय. ही डाइड इन 1833 में उसकी डेथ हुई. ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो मुस्लिम जैसे राजा राम मोहन राय वाज अ सोशल रिफॉर्मर अमंग द हिंदू सोसाइटी. तो मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही, जैसे दियोबंदी, जैसे वहाबीज, जैसे अहमदिया, जैसे अलीगढ़ एंड एटसेट्रा, बहुत सारी हैं. इसमें आधे रिफॉर्मिस्ट हैं, आधे रिवाइवलिस्ट हैं. ओके, दियोबंद मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद कासिम नानातवी एंड राशिद अहमद गंगोई. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. दियोबंद जगह है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू इंप्रूव द स्पिरिचुअल and the moral condition of the Indian Muslim. No, this was not correct. It was a very orthodox kind of a movement. जिन्होंने प्रमोट किसको किया? हदीस लिटरेचर को और हदीस को और कुरान को और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया. They also declared the jihad against the foreigners, against the British Empire. Okay, तो ये काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे. They were the revivalist. Okay. So the first statement is correct, second is wrong. The correct one is only one. Okay, and number 60, consider the following statement about the communal award of 1832. communal award कैसे हुए मैं आपको बताता हूं. 1890-30 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई. 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसका रिजल्ट कोई नहीं निकला. 1932 के अगस्त के महीने में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किए गए, जिसके खिलाफ गांधी ने फास्ट रखा अनटू डेथ. उस फास्ट को तोड़ने के लिए पूना पैक्ट साइन हुआ बिटवीन बी.आर. अंबेडकर एंड गांधी. ओके, नाउ कंसीडर द स्टेटमेंट. 32, इट डिक्लेयर्ड डिप्रेस्ड क्लास एज अ माइनॉरिटी. द स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट. It announced a separate electorate for the depressed classes. Again, the statement is correct. Gandhi went on a fast unto death on 20th September to oppose the communal award. तो सबकी सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. So this is all about the MCQ. 20 MCQ की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है. नेक्स्ट MCQ में हम 61 से 80 डिस्कस करेंगे. So this is very very important टॉपिक्स जो है ये सारे. You can join the test series of Theory 360 to further improve your preparation. Thank you.